آپ اعلیٰ جس درج پہ آ گئے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. بلوچستان میں جو کچھ ہوا پریس نے اس پر کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں کی، اس لیے جو ہے وہ تمام خبریں یہاں تک پہنچ نہیں پائیں. تو ہم نے آج مناسب سمجھا کہ ہم یہاں پر پہنچے اور ساتھیوں کو بلوچستان کی جو گزشتہ 5 دن کی صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں. اس وقت مکمل ایک انتظار اتنا بن چکا ہے. بلوچ جدید کمیٹی کی جانب سے 28 جولائی کو گوادر میں ایک قومی اجتماع کا اعلان کیا گیا تھا. 20 جولائی سے ریاست نے بلوچ قومی اجتماع کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا. ریاست پاکستان اپنی تمام مشنری طاقت اس پرامن عوامی اجتماع کو روکنے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور بدترین انسانی حقوق کی عوامل سمیت کاروبار کے تمام علاقوں میں غیر اعلانیہ نافذ کر دیا. حال جاری ہے. 26 جولائی سے گوادر سمیت ممبران کے بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے. گوادر میں نہ کسی کو جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی باہر آنے کی اجازت ہے. 28 جولائی کے دن جب گوادر کے عوام ریاستی دہشت گردی طاقت اور خوف کے سامنے پرامن طور پر ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر بلوچ راجی کی شرکت کے لیے پہنچے تو ریاستی فوج نے پرامن شرکا پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے ایک نوجوان موقع پہ شہید ہوا اور 7 زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کی حالت اب بھی خطرے میں ہے. اس وحشت اور درندگی کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں بلوچ راجی مرچی کے شرکا پرامن رہے اور راجی مرچی کو دوبارہ جاری کیا گیا. اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف بلوچ کسی کمیٹی نے بلوچ راجی مرچی کو دھرنے میں تبدیل کیا اور دھرنے کے مطالبات رکھے. بلوچستان کی تمام شاہراہوں کو کھول کر بلوچ راجی مرچی میں شرکت کرنے والے تمام قافلے جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زبردستی روکے گئے ہیں، انہیں باعث گوادر آنے کی اجازت دی جائے. نمبر 2، وہ تمام شرکا جنہیں بلوچستان اور کراچی کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کیا جائے، لیکن طاقت اور وحشت کے دور میں غرب ریاست اور اس کے اداروں میں دھرنے میں بیٹھے پرامن شرکا جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی مطالبات سننے کے بجائے 29 جولائی کو صبح ریاستی فوج نے چاروں طرف سے دھرنگاہ کا گھیراؤ کر کے اندھا دھند فائرنگ شروع کی اور لاٹھیوں سے پرامن خواتین اور بچوں پر حملے ہوئے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت مختلف شرکا زخمی ہوئے. وحشت اور درندگی کی انتہا یہ رہی کہ زخمیوں کو اسپتال تک جانے نہیں دیا گیا اور نہ ہی ایمبولینس کو آنے کی اجازت دی گئی. DBA اسپتال گوادر کو سیل کر دیا گیا اور وہاں کسی مریض کو جانے نہیں دیا گیا. لوگ اپنی طاقت اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو اٹھاتے رہے. سینکڑوں پرامن شرکا کو گرفتار کیا گیا. راجی مرچی کے لیے اسٹیج پر استعمال ہونے والے ٹرک کو نظر آتش کر دیا گیا اور اس کے قریب شرکا کی جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھیں سب کو نظر آتش کر دیا گیا اور نقصان پہنچایا گیا. اس کے بعد گوادر کے گھر گھر میں چھاپے مارے گئے، لوگوں کی گڑیاں اور قیمتی سامان کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ نیشنل پارٹی کے رہنما اشرف حسین سمیت سینکڑوں لوگوں کو ان کے گھروں سے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا. 28 جولائی کی رات کو جس وقت دھرنا جاری تھا وہاں ریاستی خفیہ اداروں نے ڈیتھ اسکواڈ کے 2 مسلح کارکنوں کو دھرنے میں بھیج کر بلوچ جیسی کے لیڈرشپ ڈاکٹر مالک کو نشانہ بنانے کی ٹاسک دی گئی تھی انہیں، لیکن خوش قسمتی سے وہاں موجود عوام نے ان کی شناخت کی کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہیں. جس پر دھرنا منتظمین نے ان کی تلاشی لی اور ان سے پستول، واقی ٹاکی اور شناختی کارڈ برآمد ہوئے، جس نے اپنی ویڈیو میں انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ میں ایم آئی کا اہلکار ہوں اور یہاں بلوچ راجی مرچی کی لیڈرشپ کو مارنے کی درخواست کی گئی. جبکہ گوادر میں 28 جولائی کی صبح اس وقت 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا.
और मोबाइल नेटवर्क का हाल बंद है, जिसके सबब हमें वहाँ हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के बारे में संगीन ख़्याल लाए गए। सबसे खतरनाक बात यह है कि बलोच की कमेटी की क़यादत को गिरफ्तार किया गया और पुलिस इंतज़ामिया बलोच की क़यादत की गिरफ्तारी को जाहिर नहीं कर रही थी, जिनकी ज़िंदगियों के मुतालिक हमें शदीद खदशात लाए गए। बलोच की कमेटी की क़यादत को गिरफ्तार करके बलूचिस्तान हुकूमत और रियासत में संगीन जुर्म का मुस्तक़िल हो रही है, जिसका रद्द-ए-अमल और नताइज उन्हें अपने बराबर भी अंदाज़ा नहीं है। मोदी साथी हज़रात, बलोच राजवंशी के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के काफ़िले कोयटा में इकट्ठा होकर 27 जुलाई को सुबह से ग्वादर के लिए रवाना हुए। कोयटा से रवाना होते ही उन्हें रियासती फौज की जानिब से रोका गया और रिकॉर्ड नहीं दी गई। काफ़िले में तादाद ज़्यादा होने की वजह से अवाम ने रिकॉर्ड को अबूर करते हुए मखदूम तक पहुँच गए। मखदूम में रियासती फौज ने काफ़िले पर सीटी फायरिंग की, जिससे 14 शुरता जख्मी हुए और 3 को सर पर गोलियाँ लगी। वो इस वक्त शदीद जख्मी हालत में और कोयटा ट्रामा सेंटर में तेरे इलाज है। इसके बाद फौज ने काफ़िले की तमाम गाड़ियों के टायर को बस्ट कर दिया, जिससे तमाम गाड़ियों के टायर लापता हो गए, जबकि सीधी फायरिंग की वजह से तमाम गाड़ियों के शीशे भी टूट चुके हैं। बलूच कौमी इज्तिमा के लिए जाने वाले इस काफ़िले के हज़ारों लोग गुज़श्ता 3 दिन से मसनून में धरना दिए बैठे हैं। तलात ग्वादर से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ यहाँ रियासती फौज का बहुत बड़ा कैंप और चेक पोस्ट है। बलूच राजवंशी में शिरकत करने वाले वो तमाम काफ़िले जो तलात पहुँच चुके हैं, उन्हें 26 जुलाई से तलात चेक पोस्ट पर रोका गया है। इस वक्त सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्किल हज़ारों लोगों को बलूच राजवंशी में शिरकत के लिए तलात चेक पोस्ट पर बंदूक के तौर पर इंतजाम बनाया गया है, जबकि मुस्तैद लोग शदीद गर्मी शदीद खराबी के बाद वापस आ गए हैं। तलात से वापस आने वालों ने वीडियो और फुटेज बनाई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह राष्ट्रीय फौज लोगों पर तशद्दुद कर रही है, सीधी फायरिंग कर रही है, आंसू गैस की शेल फेंक रही है, जिससे मुतअद्दिद लोग जख्मी और जो है 2 लोग शहीद होने की इतलात है। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल नेट बंद होने की वजह से हमें जख्मियों और नुकसान की मुकम्मल तफसीलात नहीं पहुँच रही हैं। हमें खदशा है कि वहाँ हालात शदीद खराब होंगे और राजी मुंशी के हज़ारों शुरता की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। हमें हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के बारे में शदीद खतरात है। बलूच राजी में शिरकत करने के लिए कराची और हब के काफ़िले जिनकी क़यादत में खुद कर रहा था, तो जब काफ़िले 27 जुलाई की सुबह को रवाना हुए तो उन्हें कराची यूसुफकोट और हब बाबर के मुकाम पर रोका गया। तकरीबन 12 से 14 घंटे के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद अंगोल बिजी टॉप के मुकाम पर उन्हें दोबारा रोका गया। शुरता पर फायरिंग की गई, तशद्दुद किया गया, जबकि तमाम गाड़ियों के टायर बस्ट कर दिए गए और उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस काफ़िले में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल थी, जो एक रात अंगोल में गुजारने के बाद वापस उत्तर 0 पॉइंट पर जो है पहुँचे। वहाँ पर हमने एक धरना दिया और उसके बाद जो है जब वहाँ से निकलने की हमने कोशिश की तो उन्होंने आगे विंटर पर भी रास्ते ब्लॉक किए उनसे, जिस पर हमने गडानी तराज पर पहुँच कर दोबारा धरना किया। बलूच राजवंशी को नाकाम बनाने के लिए गुज़श्ता 1 हफ्ते से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में राजवंशी की तैयारी में मशहूर पुरअमन कारखानों के घरों में छापे मारे गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके मुताबिक हमें कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। हमारे मालूमात के मुताबिक 150 से ज़्यादा लोग इस वक्त उनका जेल कोयटा में गैर कानूनी तौर पर बंद है, लेकिन हमें इनके मुताबिक भी किसी किस्म की मालूमात नहीं की जा रही। जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पुरअमन कारकुनान पर दर्जनों झूठी FIR दर्ज की गई है। बहुत साथी हज़रात, गुज़श्ता 72 घंटे से ज़ायद अरसे से पूरा बलूचिस्तान जंगज़दा है, लेकिन निकाली अफसोस का मुकाम है कि नाम नहाद स्कीम के साफ़ी और साफ़ी इदारे मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और साफ़ी शोबे के लिए
چند ایک حقیقی صحافیوں کے علاوہ کوئی بھی نامیاب مین اسٹریم صحافی میڈیا نے اس انتہائی اہم مسئلے پر ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے۔ تمام نامیاب مین اسٹریم کے صحافی خاموش ہیں۔ اس کے برعکس قاتلوں اور جابروں کو اپنے ٹاک شوز میں دعوت دے کر مظلوموں کے موقف کو سامنے لانے کی بجائے ظالموں کے موقف کو سامنے لا رہے ہیں۔ بلوچستان کے معاملات پر پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا اور صحافی بھی ریاست اور ریاستی نمائندے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اگر بلوچستان کے متعلق صحافتی اداروں کا رویہ یہ رہا تو بلوچستان میں مقامی پرنٹ میڈیا کے علاوہ باقی تمام نامیاب مین اسٹریم اور میڈیا کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اس وقت بلوچستان کی سنگین صورتحال کی انسانی حقوق کی صورتحال پر تمام بین الاقوامی صحافتی اداروں اور صحافیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ صحافتی اقدار اور اصولوں کا احترام کرتے ہیں، بلوچستان کے جنگل کا حالات وادر میں مکمل تکمیل کے نفاق اور ریاستی پاکستان کے بربریت اور مدالت کے خلاف آواز اٹھائیں اور بلوچستان کو تعمیر دیں۔ آخر میں ہم ریاست اور اس کے تمام اداروں کو وعدہ کرتے ہیں کہ فوراً بغیر کسی اگر اور مدد کے ہمارے لیڈرشپ سماج تمام گرفتار شدہ صحافیوں کو رہا کریں، وعدہ سمیت مقرر بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ سروس کو بحال کریں، بلوچستان کے تمام علاقوں میں زبردستی بندوق کے زور پر روکنے کے لیے ہمارے تمام داخلوں کے سامنے سے پوری طور پر رکاوٹیں دور کریں۔ اگر ریاست اور اس کے اداروں نے ابھی اپنی دہشت گردانہ اور جابرانہ رویے کو تبدیل نہیں کیا تو آج سے ہم غیر معینہ مدت تک کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان کو بند رکھیں گے، اور اس دوران کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے اداروں پر ہوگی۔ ہم اس پریس کانفرنس کے طور سے بلوچستان بھر میں BYC کے کارکن اور بلوچ عوام کو مطلع کرتے ہیں کہ بلوچستان بھر میں پرامن اور منظم انداز میں دھرنا دیا جائے، احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں اور یہ کام رفتار کی جائے۔ دیکھیے بھائی صاحب ایک نقاب پہن کیا جاتا تھا تو میں ڈیفینڈنگ کرتا لیکن غلط کی طرف سے میں آپ کی طرف سے آپ ہی کہہ رہا ہوں، آپ نے یقیناً جو میڈیا کا اشارہ کرا، میڈیا مالکان کا ہے، صحافی بیچارے کا نہیں ہے۔ یہ آپ ضرور اس کے مطلب باہر والوں کو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، یہ جو ہے جو مالکان کا ہے، اور ہمارے جو صحافی غیر آبادی کی طرح آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے کل بھی ہم یہاں یکجہتی کے جمع ہوں گے 4 بجے۔ یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ ہم آپ کے تمام صحافیوں کو جو روز آپ آئے چرچا کریں گے، چائے وہ پلائیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے اگر میں ابھی طرف کے طرف بلا رہا ہوں کوئی اگر نقاب میں آئے گا اور یہاں سے درکار ہوگا تو ہم کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، یہ میں ضرور آپ کو کلیریفائی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات پہنچے۔ پریس کلب کی جانب سے بھی صاحب ذمہ دار ہے، اپنی جانب سے آپ نے دیکھا ماضی کی طرح کھڑے رہیں گے اور یہ کلب آپ کے لیے دیکھیے بالکل آپ نے والے اور آپ ہمیشہ تقریباً سارے صحافی جتنے ہیں وہ ہمیشہ مخلوقوں کے ساتھ کھڑے رہے، جہاں ضرور ہوا جہاں جاتی جو ہم صحافی ہیں ملتی ہیں اس میں کام کرتے ہیں اور بنا کے یا وہ بھیجتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ وہاں پر باقاعدہ طور پر آپ کے مٹیریل ہے وہ ہر میڈیا پہ مقرر ہے، وہ ہر اس کو دیکھتا ہے، جو نیوز نہیں چلنی ہوگی تو منع کر دیا جاتا ہے کہ چلایا اس کا اس سے اجبار ہوگا۔ جہاں ایئروائز کے حالت کوئی بھی خبر ایسی نہ چلنے دے جو خبر پر آگے کے لوگ بھیجتے ہیں وہ وہاں سے غائب کی جاتی ہے، بعض بات کا تو کافی قریب بیس وہاں سے اتارنی جاتی ہے، اتارنی جاتی ہے۔ یہ جو مسلم کا جو لوگ ہیں ان کا کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ساتھ ظلم ہے جو آواز اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے مارا جا رہا ہے اور غائب کیا جا رہا ہے وہ بھی
साल काम है, 1 या 2 महीने बहुत सारे साथी जो है साथी हुए उनको मारा गया, बलोच साहब आपके साथ सूबाई गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और आप लोग कह रहे हैं कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी तक मुज़ाकरात का कोई अमल शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? गवर्नमेंट की तरफ से जब भी मुज़ाकरात की दावत दी जाती है तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट अपनी एक टीम तश्कील देती है कि ये पुराने लोग हैं ये आएंगे आपके लिए मुज़ाकरात करेंगे। हमें तो हैरत की बात है कि सिर्फ मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, लेकिन कौन हमारे लिए साथ मुज़ाकरात करने आ रहा है हमें तक आज तक किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया। तो यही हालात जो हैं जितनी गुमशुदगियाँ हों या लाश मिल रहे हैं लोगों के, वो सिंध में भी हैं तो KPK में भी हैं, तो पंजाब में भी अब ये सिलसिला चल रहा है। तो ये जो जितनी भी कॉमपरस्त पार्टियां हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ ये बर्ताव कर रही है, तो ये एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? ये पठान हो, बलोच हो, सिंधी हो या पंजाबी हो, कॉमपरस्त जो पार्टियां हैं ये सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर क्यों इकट्ठा आवाज़ नहीं उठाते जिसमें भरपूर ताकत भी बन सकती है? लेकिन आपको साथी आपको खुद मालूम है कि यहाँ पर जो भी इस वक्त जो है हमारी बड़ोदी कम्युनिटी है, PTN है या सिंधी है, हमारे दूसरे साथी हैं, उन सब के खिलाफ जो है राष्ट्रीय तौर पर जो है क्रैकडाउन है। सबको जो है इन्होंने इस तरीके से जो है बुलाया हुआ है कि हम तो सब लीडरशिप के साथ हमारे जो रास्ते हैं यहाँ उनके साथ कोई जाती होती है, हम आवाज़ उठाते हैं। आज के बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ तो सिंध में और पश्चिम में और इवन के पंजाब में बहुत सारे हल्कों में उन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई है। लेकिन चूँकि इन्होंने जो इस्तेमाल टेक्निक है इस्तेमाल किया है वो ये कि उन्होंने पूरे कम्युनिकेशन को जानते हैं, इसकी वजह से सोशल मीडिया पर जो तमाम तफसीलात जो है वो आ नहीं पा रहे। मेरे पास में मुश्किल से 5% जो है उसमें भी जो है हमारे जो है वहाँ पर जो है अलजीरा ने और रूसिया वाले ने जो है उन्होंने किरदार अदा किया है, कुछ हमें जो है वो वहाँ से निकल कर बाहर पहुँचे हैं। अदरवाइज वहाँ पर कोई मीडिया नहीं पहुँचा। हमें मीडिया से जो है हम समझते हैं कि यहाँ पर कराची में तो फिर भी स्पेस है, यहाँ लोगों ने जरूरत की है, हमारे बहुत सारे साथी हैं वो तमाम पर उसके बावजूद भी वो आकर पब्लिश करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जो बिल्कुल ही गंभीर सूरत है वहाँ पर जो है साथी जो है किसी तौर पर भी जो है हमने जो अभी तक नहीं देखा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी आया हो और उसने जो है बलूचिस्तान के इस टाइम इशू पर एक भी जो है कुछ नहीं न्यूज़ चलाई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो है हम सब पहले भी हमारे डॉक्टर महाराज ने जो है काम किया था और जो है उन्होंने हर जगह भी हो जाती है, तो यही कहते हैं कि ये सब मित्रता की चीज़ें है। यहाँ पर ये हम अकेले को मिल नहीं सकते, हम सब मिलेंगे वो तमाम लोग जो कर रहे हैं वो जब तक डिवाइड नहीं होते हम को नहीं दे सकते। आज के भी बलूचिस्तान है हम तमाम लोगों को दावत देते हैं कि वो आए और इस सिलसिले में जो है ये मुस्लिम का आराई शासन ही में ताकि जो आवाम तक ये पहुँच जाए और हम सब ये बताइए आपके मामले में क्या नई बात थी कि हुकूमत ने या फिर इस्लामाबाद वालों ने आपको अलाउ नहीं किया कि आप अपना एक जलसा 4 घंटे का क्या कर सकते, वो नहीं किया, इसमें क्या क्या सूरत ये है कि जो है जहाँ पर भी कॉमपर्सों का खास कर जो है मामला आता है या लोग प्लेटफॉर्म से या प्लेटफॉर्म से जो काम कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल ही स्पेस नहीं दिया जाता। इवन के जो है क्योंकि वहाँ पर हम भी समझते हैं कि जिन लोगों को स्पेस दे दिया उनके पीछे जो है जमात इस्लामी के ताल्लुकात हैं उनको जो है वो स्पेस दिया, वो भी इसलिए दिया कि ताकि वो वहाँ पर जाकर
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे कि बतौर सरबराह HRCP के आप क्या करने जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए मेरे ख्याल में शायद आपने पिछले 4-5 दिन के अखबार या मीडिया नहीं देखा, मुझे 25 तारीख मेरे घर से उठा लिया गया, उनके साथ पुलिस सशस्त्र थे और मिला के थाने में बिठा दिया गया, जहाँ पर DSP मुख्तलिफ किस्म के ऐसे सवाल करते रहे कि जी आपका बलूचिस्तान से क्या वास्ता है, आप बलूचिस्तान जा रहे हैं, आप खुदा जाते हैं तहरीक को मुनज़्ज़म करने में, आप उसकी असिस्ट करते हैं हमको। मैंने कहा भाई वो खुद मुनज़्ज़म है, वो खुद जानते हैं वो क्या करते हैं, आप तो ऐसे रूरल एक्टिविस्ट हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और जहाँ पर भी होगा जहाँ पर भी जाते होगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो बार बार इसी बात पर इंसिस्ट करते रहे कि आप जो है उनके साथ हैं और आप उनको मदद काम करते हैं, फाइनेंशियली या जो भी है आप करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोयटा जाते हैं, बात ऐसा था कि मैंने उनसे कहा कि भाई कोयटा जो है वो मुल्क का हिस्सा है, वहाँ जाकर जुर्म नहीं, इतफाक है कि मैं 4-5 साल से बात नहीं किया, नहीं जब झूठ बोल रहे हैं भाई, मुझे तो झूठ में जब चल जाते हैं तो झूठ बोल रहे हैं। फिर वो आगे देखिए होता यह है कि आदमी अपने आप पर हमें छुड़ा रहे हैं, हम अपने किसी ने हमको इस राह पे धकेला नहीं है, तय कर नहीं है, ये रास्ता हमने खुद जो है आप सच की लड़ाई का हमें पता था एक खासदार रास्ता है, तकलीफदार रास्ता है, लेकिन हमने खुद इसको चुना, इसलिए हम काम कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन उस वक्त मुझे बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने फ्रेंड लाभ में मुझे कहा आपके बेटे का है, मुझे आपका कहने था तो उनके खास पास तस्वीरें मुझे नहीं पता उन्होंने कहा था कि क्योंकि कहा वो हमने मेरी मीडिया में बताया कि देखो एक तो न्याय की फैसला मेरे बेटे की सभी तीनों के साथ और एक थी हमारी जो लीडर गायब है बाहर दोस्तों के साथ, कहीं देखेंगे आपकी बेटी भी आपको खानदार आपको यार तस्वीरें जाना नहीं करना ठीक है साथ है, सच के साथ है, आप में इससे नहीं रोक सकते। तो इसमें काफ़ी गैस वो उनका लंबा पकड़ा था, वो बार बार कहीं से हटाते थे। जब प्रेशर एकदम वीडियो को भी खबर मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे खबरें चलने लगी, फिर उनके साथ और हमने मदद मिला शायद बाहर डालने हैं ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा। उसके बाद हमारे मुद्दा हमारे एक्टिविस्ट थे वो आपको होकर शुरू हो गए, उससे बहुत ज़्यादा हो गए, उसमें अलग जा किसी बात नहीं की, इससे कोई मुझे शायद बुलाया था पहले हमारा कोई नहीं, इसमें आपको पता है कहाँ से आप कमान आए होंगे, जब कि आप प्रेशर बना है तो इसके पीछे से बात नहीं कहते हमारा नहीं आप पुलिस को रीड कर दो, छोड़ दो, कर दो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नाम क्या नहीं आना चाहिए सबको पता है कौन लोग इसमें इन्वॉल्व में कौन स्टेटस कर रहे हैं, भाई हम फिर भी कर रहे हैं, देखिए हमने उसको उनको भी कहा, हमने कहा हमने नहीं हो जहाँ सानी की तलावती होगी, जहाँ आइन कानून की तलावती होगी, जहाँ पर UPHR गौर साइन किए उसके मुख्तलिफ आर्टिकल में अपनी तलावती होगी, हम वहाँ खड़े हैं, हम लोग करते हैं, हो सकता है उसमें सियासत से एक अलग बात है, लेकिन इनके लिए जो जुल्म हो रहे हैं, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है और जिस तरीके से गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर इनके साथ अमल किया जा रहा है, उसमें हम इनके साथ हैं, हम खड़े हैं और इससे हमें ये है। अभी बात क्या है, कोर्ट से बैठे हुए लोग सवाल किया था, आपने कुछ किया था क्या मेरा सवाल मेरा ये था कि सब कॉन्फ्रेंस जो है तमाम लीगल पठान सिंधी बलोच पंजाबी सब इकट्ठे क्यों होते हैं? इसमें बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं रेगुलर कमिश्नर पाकिस्तान इनके दरमियान कोर्ट का काम करते हैं ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए और लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो मुझे फोकस है कि खासमा जारी जैसी कार्य जवानी और आज हम उसके नतीजे में उनकी मशक लेंगे, आज खड़े होने कर रहे हैं और उसकी रूह खुश हो रही होगी जो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे साथी में तो मेरी मशक को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी कोई नहीं, आप हमें फांसी दे सकते हैं, हमें जेलों में डाल सकते हैं, गोली मार सकते हैं, जो पूरा सीना जो है उसके
लिए तैयार है। आपकी गोलियाँ, आपकी बंदूकें हमारी मुस्कुराहटों से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हमारी मुस्कुराहटें हमारी बंदूकों से, हमारे असले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर